So, welcome all of you. I'm really excited to speak about dancing with uncertainty. And thank you so much for such a warm and nice welcome. So, right now, what do we mean by uncertain time? First of all, we need to understand what do we mean by uncertain time. Number one is strategy, products and markets are not permanent. Okay, acceleration peak पे होने वाला है. जो भी आपका strategy, products और market है, it's not going to be permanent. It's a period of personal turmoil and everything will be challenged. The way you communicate it, the way you produce result, the way you work, the way you think, you have to learn, unlearn and relearn things. Okay, therefore you have to maximize your chances to survive. But do you believe will be enough? Survival is not enough. You have to win. So are you ready to win in this uncertain time? Are you ready to dance with this uncertainty? Okay, whenever I sit for the consultation meeting, I ask entrepreneurs what is not going well in your business. So they say, sir, market is very volatile, so our profits and processes are also very volatile, so we are not able to make healthy profits. So I ask them, hello, am I audible to everybody? Okay. सो आई आस्क देम कि आपके सेक्टर के दूसरे मार्केट्स में कंपनीज है अच्छे खासे स्केल अप कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हेल्दी एम्प्लॉयज है, पूरा वातावरण पूरा वहां का कल्चर भी बहुत अच्छा है, सो सर्टेनली मार्केट इज नॉट एन इशू. व्हाट डू यू थिंक? सो ही सेज, सर, आई थिंक वी आर नॉट एबल टू स्ट्रेटेजाइज प्रॉपरली, और इवन वी आर एबल टू स्ट्रेटेजाइज, लोग यहाँ के प्रोसेसेस प्रॉपर फॉलो नहीं करते. सो ओके, आपने स्ट्रेटेजाइज प्रॉपर नहीं किया है, इसकी वजह से मार्केट में जैसे अप्स डाउन होते हैं वैसे आप रिएक्टिव अप्रोच लेके आप भी अप डाउन हो जाते, क्योंकि आपके प्रोसेसेस ठीक नहीं है. तो मार्केट जैसे हिलता है वैसे बिजनेस हिलता है. बिजनेस क्यों हिल रहा है? क्योंकि प्रोसेस हिल रहा है. प्रोसेस किसकी वजह से हिल रहा है? लोगों की वजह से. He says that people are not willing to work properly. They don't know what is systemization. They are not able to understand my standards and all that stuff. Now here comes a $1,000,000 question. I asked them, लोग किसकी वजह से हिलते हैं? What drives people? What shake them? Business process people. एंड में यहाँ पे आ जाता है, if you handle this piece, everything will be streamlined. सब कुछ streamline होने वाला है. सब कुछ स्ट्रीमलाइन, अगर इसे आप मैनेज कर लेते हो सब कुछ स्ट्रीमलाइन होता है, क्योंकि यहां से आप जैसे सोचोगे, वॉट एवर स्टेज यू आर इन, वैसे ही आप चीजों को लॉजिक दोगे, रैशनलाइज करोगे, वैसे ही चीजें एग्जीक्यूट करोगे, वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, और जो आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ है वो और एम्पावर हो जाएगा. ओके और ये जो पूरा सेशन वो कनेक्टिंग डॉट्स वाला सेशन है. जैसे 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 सेशन आगे बढ़ेगा यू विल एबल टू गेट द होल पिक्चर. सो ड्यूरिंग दिस जस्ट गो विद द फ्लो विथ मी, जस्ट गो विद द फ्लो. आप सोच रहे हो कि बिजनेस का यहाँ कहाँ से संबंध आ रहा है, अलग एग्जांपल आ रहा है, नहीं. पूरा जब सेशन हो जाएगा तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. जस्ट बी विथ मी, जस्ट डोंट गो एनीवेयर, पे योर फुल अटेंशन ओवर इट. ओके, साउंड फेयर इनफ? ग्रेट. So first of all, you should be thankful and grateful to your college and your professors. They are not only working on your technical aspect, but they are also working on your attitudinalship. किसी के पास बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल है, बहुत अच्छे से बात करते हैं टेक्निकली, बहुत टेक्निकली साउंड है, but he is not able to communicate well. He don't have that tough mindset. He can't take things if someone hit him below the belt. No use of that. अगर किसी के पास बहुत सारा टफ माइंडसेट है लेकिन कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है जो मार्केट के लिए रिक्वायर है, he is not going to produce results. So ये दोनों बाजू पे आपको काम करना है, and your college is working for that, and you should be thankful and grateful for your institution and your professors. हमारे क्लाइंट है रमणीक भाई. कंसल्टेशन मीटिंग होने के बाद उन्होंने पूछा कि रवि, यू आर अ कंसल्टेंट, ओके, मुझे बताओ, मैंने 1999 में एक BMW खरीद ली. 1999 में मैंने BMW खरीद ली, कुछ महीने चलाई, लेकिन अभी चलती नहीं है वो. मैंने रमणीक भाई से पूछा क्यों नहीं चल रही है, तो पता नहीं, रीजन पता नहीं. आई आस्क्ड हिम अगेन कि इसकी सर्विस कब कराई थी, तो रमणीक भाई ने मुझे उल्टा पूछा, सर्विस, ऐसा भी कुछ होता है इसमें? आगे बताऊंगा कि एक एग्जांपल का एक्चुअल मीनिंग क्या था, मैं इससे क्या कहने जा रहा था. सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक. सो अवर रूल नंबर 1 is market orientation. Rule number 1, market orientation. Forget about yourself, focus on others. Forget about yourself, focus on others. Please दोस्तों नोट्स ले लीजिए. Okay, when lockdown hits, what happened? People started thinking only about themselves, their girlfriend, their boyfriend, their wife, their market, their job, their company. Only it's about too much me and me. As a result, they are not able to see reality. Avoidance happened, and because of that avoidance and no reality check,
people want to escape from this situation, and because of this bad mood, they don't want to meet anyone. They don't want to meet friends, colleagues, customers, vendors, family members, team superiors, nobody. I just want to ask you one question: where do we get courage from? हिम्मत कहाँ से आते? Basically, when we meet people, when we interact with them, when we understand their challenges, we come to know how they are planning to bounce back. समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजाइज करते हैं. जो जाइए, लोगों से मिले, गेट अप, जस्ट डोंट सबोटाज योरसेल्फ. एक जगह पर बैठे हो तो वहां से उठ के लोगों को कॉल लगा दीजिए, वेबिनार अटेंड कीजिए, स्काइप पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, आप जाकर बात कीजिए. अगर सोशल डिस्टेंसिंग करके पॉसिबल है तो ग्रुप में जाके मिलिए, लेकिन लोगों के साथ बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, उनके चैलेंजेस अंडरस्टैंड कीजिए और वहां से निकलने का चक्कर चलाइए. और हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है जो भी एसोसिएशन करने के लिए, कि people are bound to tell you something, and from that idea, even from that single word, you will get idea, you will get some strategy. So पहला रूल है कि अपने आप को सबोटाज करते हुए एक जगह पे नहीं बैठना है. You have to speak with people, you have to go out, you have to attend webinar, you have to interact. So पहली चीज ये है. और 3 चीजें मैं आपके लिए लाया हूं, स्टूडेंट्स के लिए बोनस चीजें लाया हूं, वो एंड में मैं बताने वाला हूं. सो पहला चीज आपने किया कि आपने अपने आप से जो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अपने आप पे जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोकस था, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फोकस आपने कर दिया है यहाँ पे. सो आपने अभी वो फोकस हटाकर आप रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए चले गए. हियर कम्स अवर रूल नंबर 2, फॉरगेट अबाउट बेनिफिट, फोकस ऑन रिलेशनशिप. There are 6 basic human needs to build a lasting, powerful and value contributing, perfect two-way smooth communication relationship. So first one is certainty, variety, significance, love and connection, growth, and after that contribution. If you plan strategically and if you consciously and deliberately make, और आप कह सकते हैं एफर्ट डाल के ईच लेवल पर, हर एक लेवल पर आपने अगर कॉन्शियसली वैल्यू कंट्रीब्यूट किया तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म टिकेगा. इसके ऊपर अलग से मैं 3 घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए इसके ऊपर 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं. ये मिस्टर एंथनी रॉबिन्स ने बताई हुई है. वहां पे कैसे ट्रिगर करना है रिलेशनशिप को. अगर ग्रोथ पे हो तो आपको क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वैरायटी पे हो तो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सर्टेनिटी अगर आपको क्रिएट करने, सो व्हाट यू नीड टू अप्लाई. ये अगर 6 चीज पर स्ट्रेटेजाइज और कॉन्शियस एफर्ट डाल के अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो बिलीव मी, वो सामने से चीजें लाके देती है रिलेशनशिप. वो सामने से वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं. तो पहला काम हमने किया कि लोगों के साथ बातें करना शुरू की, लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया. और जुड़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप. अभी रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा कि आपको 6 बेसिक ह्यूमन नीड अप्लाई करने, कॉन्शियसली प्लान करना है, तो वैल्यू क्रिएशन के बगैर वो होता नहीं है. सो फॉरगेट अबाउट सेलिंग, फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू. So what normal people do? See, I am anxious. I am facing uncertainty. I don't have any idea what I'm going to do. So I don't care about your problem. Just solve my problem only. So ये short term interaction हो जाता है. I don't know about anything. तुम्हारा प्रॉब्लम गया वहां पे, कोई मुझे प्रॉब्लम, तुम्हारे प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं. जस्ट सॉल्व माय प्रॉब्लम फर्स्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही करते हैं और यही इश्यू हो जाता है अनसर्टेनिटी में, कि लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए वो लोग छोड़ देते हैं चीजें. सो वैल्यू 3 तरीके से किया जाता है. 3 टाइप्स. डॉस कहते हैं उसे, DOS. ये ध्यान में रखिए, DOS. डेंजर को एलिमिनेट करना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा देना और स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर देना. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपको मालूम पड़ा कि मुझे डायबिटीज है और आप मेरे पास आए और मुझसे कहा कि सर आपको डायबिटीज है और एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसका साइड इफेक्ट होता ही नहीं है इस आयुर्वेदिक दवाई का, और आपका शुगर बहुत अच्छे से ड्रॉप डाउन होता है, बहुत कंट्रोल में रहता है. तो डायबिटीज की वजह से मेरे लाइफ में आने वाला खर्चा और जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली थी, आपने वो डेंजर मेरे लाइफ से एलिमिनेट कर दिया. आप कहते हैं सर आप वेबिनार लेते हो, इतना अच्छा बोलते हो, सर व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, कि एक आप 5-6 वीडियो बना लो और वो कोर्स लॉन्च कर दो ना. रेवेन्यू आपका आता रहेगा. सिर्फ 2-3 दिन का मेहनत है सर. आपको सिर्फ 8-10 वीडियो आपके लॉन्च करने, एक कोर्स आप लॉन्च कर दिए. तो ये अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर दी. सर यहाँ पे 3 लोग हैं, इन 3 लोगों से आपसे मिलना है, बिहेवियरल चेंज के बारे में वो लोग सुनना चाहते हैं. सो ये अपॉर्चुनिटी, ये रेफरेंस देकर आपने वो मेरी अपॉर्चुनिटी वहां पे ग्रैब करा दी. अभी स्ट्रेंथ.
सो आप कहते हैं कि सर आप जो भी बोलते हैं ना कि इंटरव्यू में ऐसे फेस कीजिए इंटरव्यू को, ये क्वेश्चंस आते हैं तो इस क्वेश्चंस को ऐसे आंसर करना है, यू हैव टू कीप योर बॉडी लैंग्वेज दिस, इंटरव्यू के जाने से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है, आने के बाद क्या करना है, ज्वाइनिंग होने के बाद क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या फ्रेमवर्क है। सर इसका आप कोर्स बनाइए ना। तो ये जो मेरे डिस्टिंक्ट फोर्टे थे, ये जो मेरा स्ट्रेंथ था, वो आपने मैक्सिमाइज करा दिया। लेट मी गिव यू एन सेकंड एग्जांपल कि आपका दोस्त कोई अगर फेल हो जाता है, ओके, आपको पता है कि वो बहुत इमोशनल बंदा है, बहुत वो दिल पे चीजों को ले लेता है, आप जाते हो और उसका हौसला बढ़ाते हो। वो टू मच इमोशंस की वजह से होने वाला जो डेंजर था, आपने वो एलिमिनेट कर दिया। आप उसे करियर काउंसलर के पास लेके जाते हो और बताते हो अगर फेल भी हुए वापस पास तुमको होना है, और पास होने के बाद तुम्हारे ये लाइफ का यहाँ पे एंड नहीं है, और 20 25 40 50 अपॉर्चुनिटी है जिससे लाइफ में तुम बहुत ग्रो कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। सो ये आपने उसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करा दी। आपको पता चला कि उसका क्रिएटिव दिमाग बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा, क्रिएटिव है बंदा, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छी पोएट्री करता है, तो किसी वेबिनार का आपने पास उसे दे दिया क्रिएटिव थिंकिंग के रिलेटेड, क्रिएटिव राइटिंग के रिलेटेड, ऐसे ऐसे वेबिनार होते हैं, वहां पे उसको एनरोल करा दिया, उसको इन्फो कर दिया, ये आपने उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करा दी। सो पहले हमने लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू किया, इंटरैक्ट, दूसरी चीज की इंटरैक्ट का ऑब्जेक्टिव सेट किया। इंटरैक्शन का ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय इंटरैक्शन? टू बिल्ड रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किस चीज पर बिल्ड की जाते हैं? वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू तीन चीजों से क्रिएट होती है, दैट इज एलिमिनेटिंग डेंजर, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कराने से। ओके, अगर आपको लगता है कि अभी सेशन अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, तो अभी इसी वक्त इस सेशन की लिंक, ये जो फेसबुक पे हो रहा है, ये लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने जो नियर वन डियर वन है, उनको अभी शेयर कीजिए, लोगों को बुलाइए। आप अभी से वैल्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू चाहते हैं, योर कॉलेज इज डूइंग ऑलरेडी फॉर यू, आप भी इसे और बढ़ाइए और पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। अभी इसी वक्त लिंक आप अभी भी शेयर कर सकते हैं। अपना वैल्यू क्रिएशन का कार्यक्रम आप अभी इसी वक्त, हियर एंड नाउ, टेक एक्शन नाउ, अभी चलाना शुरू कर सकते हो। सो अभी राइट नाउ मीडिया शो कर रहा है, मीडिया इज शोइंग दैट देयर आर नो जॉब्स, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, मेरा जितना एक्सपीरियंस और जितना स्टडी है, जितने एक्सपर्ट से मैं मिल रहा हूँ, तो ऐसा कोई जमाना नहीं था एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 कि जहाँ पे मार्केट में, किसी भी इकोनॉमी में, जो जॉब करना चाहे उसके लिए जॉब नहीं थी। यस, जो जॉब करना चाहे उसके लिए जॉब नहीं थी। अगर कुछ समय के लिए आप अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज कर लेते हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ महीनों के लिए आप अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज कर लेते हो, जैसे अभी सर ने कहा कि अभी ये न्यू नॉर्मल है, इस न्यू नॉर्मल में अगर थोड़े महीनों के लिए आप अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज कर लेते हो कि मुझे 1 लाख मिलने वाला था हर महीने का, अभी 25,000 मिला, या फिर 50,000 मिलने वाला था, 15,000 मिल रहा है। बॉस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बाउंसर्स तुम्हारे पास आने वाले हैं एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सेंचुरी। तो बाउंसर आ रही है तो वहां पे खेलने में जस्ट डक दैट, वहां पे अगर डक कर दोगे तो बचोगे, एक लूज बॉल मिलेगी, वहां पे 4 मारना है, 6 मारना है, तुमको सेंचुरी करनी है। वो जो बाउंसर आ रहा है उसके ऊपर पूरा वो मैच का कंक्लूजन मत कर। अगर ये एक्सपेक्टेशन अभी मैनेज कर लेते हो तो जो एक्सपेक्टेशन टूटने का, वो जो तुम्हारे सपने टूटेंगे, उससे वो एंग्जाइटी आएगी, वो एंग्जाइटी की वजह से जो इश्यू आने वाले हैं, वो उसका जो डेंजर था वो एलिमिनेट कर दिया आपने, अपने आप कर दिया। एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? अभी सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, हाइजीन इक्विपमेंट, उसके रिलेटेड जो भी सर्विस है, दिस इज राइट नाउ दिस इज रियली ग्रोइंग मार्केट। सर्विस रिलेटेड ये जो भी चीजें हैं, हाइजीन रिलेटेड, क्लीनिंग रिलेटेड, फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड, बहुत बढ़नी है। इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड आप रिसर्च करना शुरू कीजिए कि और इसमें अभी ग्रोइंग इकोनॉमिक, ग्रोइंग मार्केट कौन से है, ग्रोइंग टेरिटरीज कौन से है, इससे आप बात करें, लोगों से मिले, एक्सपर्ट से मिले, ऑनलाइन आप ईमेल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबिनार पे मिल सकते हैं। अभी मैंने मुंबई में देखा कि सेफ्टी डिवाइडर कार में ही लगे हुए, ओके, इंडस्ट्रीज में मास्क, ग्लोव्स ये लोग बेच रहे हैं, वहां पे स्ट्रेटेजिकली बेच रहे हैं ये लोग, ओके। अगर ऐसा करते हो, ये इंडस्ट्री में आप ढूंढना शुरू करते हो, तो आपने अपॉर्चुनिटी पकड़ना शुरू कर दिया। अभी स्ट्रेंथ को आप कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हो? जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉलेज आपके लिए ये सेशन अरेंज कर रहा है, जिससे आपके टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया जा रहा है। आपकी रिजल्ट लाने की जो कैपेबिलिटी है, वो रिजल्ट लाने की कैपेबिलिटी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग कॉलेज मिलके पूरा आपका डेंजर, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ, डेंजर एलिमिनेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपकी मैक्सिमाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं। और देर आर सो मेनी वेज टू क्रिएट वैल्यू। आप, जैसे मैंने अभी कहा कि लिंक भेजिए अपने नियर वन और डियर वन लोगों को,
सामने वाले का एम्पैथेटिक लिसनिंग, जो उमेश सर हमेशा कहते हैं कि एम्पैथेटिक लिसनिंग, किसी के लिए वो एम्पैथेटिक लिसनिंग ही काफी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा या बंदी है जिसको इस एम्पैथेटिक लिसनिंग की बहुत सारी जरूरत है, तो जाइए उनसे मिलिए, बात कीजिए, सिर्फ सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, एम्पैथेटिकली सुनिए, नोटिस कीजिए। आप बुक्स दे सकते हैं, ऑडियो बुक्स दे सकते हैं, ऑडियोज अलग अलग तरह के दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, सेमिनार के रिलेटेड बात कर सकते हैं, वर्कशॉप दे सकते हैं। एंड दिस अ रूल ऑफ नेचर, आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग सो मच वैल्यू यू विल गेट व्हाट यू वांट। इट्स अ रूल ऑफ नेचर, फर्स्ट यू हैव टू गिव, देन यू विल रिसीव ओनली। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस वन थिंग कि अनसर्टन टाइम में अभी रिश्ते बनाना जरूर है, और लोग ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं कि अनसर्टन टाइम में उनको समझ ले और उनके लिए वैल्यू कंट्रीब्यूट करें। ओके, अदरवाइज आप सिर्फ अनसर्टेनिटी में शॉर्ट टर्म गेम खेलने के लिए जा रहे हो, ओके, सो यू विल बी कमोडिटी, यू आर नॉट एबल टू इन कैश, और यू आर नॉट एबल टू गेट हायर प्राइस और प्रीमियम प्राइस। सो प्रोवाइड कीजिए वैल्यू। पहला क्या किया हम लोगों ने, जस्ट जाइए, लोगों से मिलिए, इंटरैक्ट कीजिए। उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, 6 बेसिक्स ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की जाती है, वैल्यू देने पर। वैल्यू देने के 3 तरीके कौन से है, डेंजर को एलिमिनेट करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करा देना, और स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर देना। अगर वैल्यू क्रिएट करेंगे तो सामने से मल्टीप्लाई होके चीजें आपके फेवर में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बी अपॉर्चुनिस्टिक, फॉरगेट अबाउट लॉसेस, focus on opportunity, forget about your losses, focus on opportunity. Nowadays it has become a complaining mentality, and remember my friends, where the focus goes energy flows. See, ये मार्केट मेरा था, है और रहेगा, ओके, ये जॉब was mine, is mine and will be forever. ये मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, नो, नॉट एट ऑल। अनसर्टन टाइम में सब कुछ डिसरप्ट हो रहा है, होता ही नहीं है ऐसा कुछ। अनसर्टन टाइम में अभी अगर एक्सेलरेशन अभी पीक पे, हम लोग अगर पास्ट का एग्जांपल ले, अगर ट्यूशन क्लासेस करके एक इंडस्ट्री थी, बायजू ने आके वो पूरी की पूरी तरीके से 80-90% डिसरप्ट कर दिया। अभी मैं कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स को मिल रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज जैसे मुंबई में, उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, अभी जो मैंने बताया कि मास्क के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, क्लीनिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सैनिटाइजेशन हाइजीन की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उनसे मैंने बात की। तो उनका डायलॉग क्या था, सर मास्क मेकिंग इज अ मिनियल वर्क, मास्क मेकिंग इज अ मिनियल वर्क। अगले ही सेकंड मेरे मुंह से डायलॉग निकला कि जस्ट बेवकूफ.com एंड क्राफ्टिंग क्रो, ये 2 वेबसाइट पर आप एक बार जाके आइए। इसी मिनियल वर्क से ये 2 कंपनीज करोड़ों कमा रही है महीनों की, यही इसी मिनियल वर्क से। ओके, सी इफ दिस कंपनी कैन हैंडल देयर ईगो, मैनेज देयर एक्सपेक्टेशन, कांट यू हैंडल योर्स? एंड लेट मी टेल यू कि अभी आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बार आपने मोमेंटम को जनरेट कर दिया, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल क्रिएट दैट स्नोबॉल इफेक्ट, और जो भी आपके पास आने वाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आने वाला है। सो कोई भी काम अभी छोटा नहीं है, जस्ट ले लीजिए और उसमें मोमेंटम जनरेट कीजिए। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड, मोमेंटम इज मच रिलायबल एंड ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोमेंटम आ गया तो मोटिवेशन आएगा, आगे आगे काम करोगे, और वो आने वाली चीजें आपके लिए, आपको आने वाली लीडरशिप, आपको आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मिलने वाला पे, आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, आपको मिलने वाला एक्सपांशन का मौका, आपको मिलने वाला ग्रोथ का मौका, इट विल बी इन कंपाउंड इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड। जस्ट स्टार्ट व्हाटएवर यू हैव। Now next rule is be progressive, forget about difficulties, focus on progress. Sir, I am from finance, sir, how can I sell? Yes, you can sell my dear friend, you can sell. Selling, cycling, swimming, speaking, communication, these are functional skills. ये functional skills है। कोई भी चीज फंक्शनल स्किल है जो भी आपके करियर के रिलेटेड है, आप वो सीख सकते हैं। सिर्फ आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस और एक्सपोजर की जरूरत है, आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस और एक्सपोजर की जरूरत है। नई चीजें आएगी तो नया चैलेंजेस आने ही वाला है, और नई ग्रोथ आने वाली है। नई चीजें, नए चैलेंजेस इज इक्वल टू न्यू ग्रोथ। लेट मी शेयर यू सम dialogues related to communication skills. Okay, I want to play with numbers. फाइनेंस गाय, अभी जितने एमबीए कॉलेज से मिलता हूं ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड इनके ये डायलॉग्स है, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम हियर टू मैनेज प्रोसेसेस, ये ऑपरेशंस वाला,
आई एम हियर टू हायर फायर एंड ट्रांसफर सैलरी, ये एचआर का पॉइंट ऑफ व्यू है. आई एम हियर टू मेक सॉफ्टवेयर, ये ही इज आईटी गाय. कम्युनिकेशन इज अ जॉब ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, आई एम एन एमबीए. ये मार्केटिंग वालों का अलग स्वैग रहता है, ये अलग स्वैग वाले ही डायलॉग्स है. लेकिन ये डायलॉग्स व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट दैट टाइम दिस डायलॉग्स आर रियली गुड. इकोनॉमी अच्छे से चल रही है, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, एट दैट टाइम ये डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं. बट राइट नाउ इन अनसर्टन टाइम, अगर इस अनसर्टेनिटी में आपको डांस करना है और आगे जाके ग्रो होना है, तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर रेवेन्यू विल कम, from where savings will come. Whatever I do, whatever activity I perform within my organization, from where I can generate revenue, or whatever I am doing, ये कॉस्ट सेविंग है, कहीं पे भी इसका कॉस्ट सेव हो रहा है. और अगर ये वैल्यू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर देते हो, ऐसे लोगों की तलाश में आज ऑर्गेनाइजेशन है. मैं एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ, स्पेशली एसएमईज में, कि लोग क्रिएटिव चाहिए उनको. सो यू हैव दैट चांस कि अगर डूबते वक्त में आप लोगों ने उनको साथ दे दिया, तो आने वाले वक्त में, जैसे मैंने पिछले अभी जस्ट कुछ मिनट पहले एक्सप्लेन किया था, कि जो भी मिलेगा वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. इट्स माय पर्सनल गारंटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने होते हुए देखा ही है. सो प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशन और सोचो कि आप रेवेन्यू कंपनी के लिए कहां से जनरेट कर सकते हो. रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो तो सेविंग कैसे कर सकते हो. जस्ट फोकस ऑन द, ये क्वेश्चन पूछिए. If you ask lousy questions to your brain, it will give you lousy answers. If you ask solution oriented questions to your brain, it is bound to give you a solution oriented answers. Next is being in the present. Forget about your future, focus on today. You may say, sir आप क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने कहा था कि सर फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, फ्यूचर के रिलेटेड काम करना है, फ्यूचर के. सर योर स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस टू रूल्स आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी सर. यहाँ पे हिंदी में एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है मैंने, भविष्य के बारे में मायूस न होते हुए भविष्य पे विश्वास करते हुए आज पे ध्यान दो. लोग बोलते हैं कि मुझे लंबा गेम खेलने का. तुझे लंबा गेम खेलने का है, तू 20 किलो काम करेगा, तू 100 जन का टीम खड़ा करेगा. 100 तो बाद में आएंगे, लेकिन आज तुझे एक की जरूरत है, पहले उस एक को खड़ा कर. आज के लिए आज को क्या काम करना है तुझे, आज रेज्यूमे अपडेट करना है तो पहला वो कर. मेरा फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी कैसा रहेगा, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स मेरे साथ हो गया तो मुझे सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो कहां जा रहा है तू बॉस, वहां पे कहां जा रहा है, वो बहुत दूर है मैदान. उसके बारे में सोच मत अभी, उसके बारे में प्लान कर, लेकिन उसके रिलेटेड जो स्टेप नियर लेने वाला है, नियर पहुंचाने वाली है, वो आज के दिन में है. मैंने आज का आज मेरा संभाल लिया, कल का आज संभाल लिया, परसों का आज संभाल लिया. एंड योर फ्यूचर इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ योर टुडे. अगर मैं आज का आज संभाल रहा हूं, अगर मुझे सपोज 5 किलो वजन कम करना है ये महीने में, तो मैं आज सुबह उठ के 15 मिनट प्राणायाम करना, दैट शुड बी माय प्रायोरिटी. मैं सोच रहा हूं मेरे 6 पैक कैसे बनेंगे, मुझे 3 घंटा जिम में जाना पड़ेगा या अभी 2 घंटा में घर में कैसा जिम लाऊं, क्या इक्विपमेंट, वो तो बहुत दूर की बात है. इट्स अ ट्रैप, आपके ब्रेन का ये ट्रैप है, वो प्रोक्रास्टिनेशन का ट्रैप है. इस प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रैप से बचिए. आप प्लान कीजिए, आप स्टडी के लिए प्लान करते कीजिए, लेकिन आज के दिन में अगर 2 चैप्टर पढ़ने, जस्ट फोकस ऑन दो 2 चैप्टर्स. अगर आज के आज लोग काम नहीं करते, एंड आस्क मी सर गिव मी गारंटी माय बिजनेस विल टर्न अराउंड. सर मुझे एंजाइटी नहीं आएगी सर इंटरव्यू में आई कैन स्पीक वेरी वेल. सर प्लीज गारंटी दीजिए ना मुझे. मैं कैसे गारंटी दे दूं अगर मैंने बताई हुई जो आज की आज करने वाली चीज है तुम नहीं कर रहे हो. हाउ कैन एनीवन, वो ऊपर वाला भी गारंटी नहीं दे सकता. सो प्लान फॉर द फ्यूचर, और जो फ्यूचर में आज के दिन में आपको काम करना है वो आज के दिन में कर दो. और इससे एक चीज होती है कि 10 दिन के बाद जो आने वाला लोड है वो आता नहीं है. आज मैंने इंटेंसिवली काम कर दिया, आज मैंने संभाल लिया ना अपना, तो मेरा कल संभल गया, मेरा परसों संभल गया. रोज रोज सिर्फ आपको अपने आज को संभालना है. आज 5 लोगों से मिलना है तो जाके 5 लोगों को कॉल कर, स्क्रिप्ट बना, टोनैलिटी उसमें डाल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस वहां पे तैयार कर. जस्ट कॉल देम, जस्ट कॉल दिस 5 पीपल. 20 25 50 लोगों का, 200 लोगों का नेटवर्क तेरा आगे बनेगा. लेकिन आज 5 लोगों को अगर कॉल करना है तो 5 लोगों को जाके कॉल कर. रेज्यूमे अपडेट करना है, रेज्यूमे अपडेट कर.
स्किल सेट सीखना है, 3 चैप्टर है स्किल सेट के और रिलेटेड, वो 3 चैप्टर आज खत्म कर, सीख के आज कर। नहीं तो 2020 का भी यही सिचुएशन है, 2021 का भी यही सिचुएशन होगा माय डियर फ्रेंड्स। आज संभालो, वो एंजाइटी आज में ज्यादा नहीं आती, प्रेशर कम रहता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है। फ्यूचर के लिए प्लान करे, लेकिन आज जो फ्यूचर की तरफ लेके जाने वाला है उसके ऊपर इंटेंसिवली फोकस कर दीजिए। Then it comes, forget about who you were, focus on who you can become. See, your story may not have a happy beginning, but it doesn't make you who you are. Okay, let me repeat, your story may not have a happy beginning, but it doesn't make you who you are. It is the rest of your story who you choose to be. You are not your past, you are the resources and capability जो past से आई है, you glean from it. हम लोग कहते हैं ना एमबीए में कि फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना चाहिए। यू शुड नीड टू टेक फीडबैक, और चैंपियंस लव फीडबैक, व्हाटएवर काइंड ऑफ फीडबैक, किसी भी तरीके का। अगर सचिन तेंदुलकर हो, माइकल जॉर्डन हो, कोई भी परफॉर्मर हो, कोई भी कोच हो, कोई भी हो, अगर वो चैंपियन है, वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ही लव फीडबैक। वो ब्रेकफास्ट में सुबह फीडबैक खाते हैं, सो ब्रेकफास्ट में फीडबैक खाइए। जो भी आपका पास्ट है उससे क्या लर्निंग मिली है वो लीजिए और संभावना लाइए। अगर मैं मार्केटिंग में हूं या मैं फाइनेंस में हूं, और अगर मार्केटिंग में या फिर सेल्स में मुझे अपॉर्चुनिटी है, आप बढ़ सकते हो, फोकस कीजिए। अभी मैं स्टेज पे जाके बोलता हूं, 1-to-1 सेशन लेता हूं, वेबिनार बहुत पहले कम लेता था। नाउ आई एम फोकस कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंस मेरा कैसा बढ़िया बना सकता हूं। चेंज योर पैराडाइम, आई वुड रादर से शिफ्ट योर पैराडाइम। क्या बन सकते हो इसके रिलेटेड फोकस करो, और नॉट नेसेसरी, यू आर नॉट इक्वल टू योर पास्ट अनलेस यू अलाउ इट। आपका पास्ट निगेटिव या पॉजिटिव अगर है और वैसा ही चलता रहा तो वैसा ही रहेगा। अगर आपका पास्ट पॉजिटिव और निगेटिव है, आप उसमें अगर कुछ स्ट्रेटेजिकली चेंज लाते हो, प्रोएक्टिवली, जो उमेश सर कहते हैं हमेशा, प्रोएक्टिवली आप अगर कुछ चीज करते हो उसमें, तो आपको जैसे चाहिए वैसा फ्यूचर आपका बन सकता है। और ये सब चीजें करने के लिए आपको हमेशा अपना न्यू वर्जन देना ही पड़ेगा। योर लाइफ ऑलवेज डिमांड्स अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाय सिंपल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट में रिसेशन हो या कुछ भी हो, आपको प्रीमियम प्राइस लोग ऑफर करेंगे, क्योंकि आप अपग्रेडेड वर्जन हमेशा अपना दे रहे हो। अपग्रेडेड वर्जन में अपग्रेडेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अपग्रेडेड चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आप बिल्ड कर रहे हो। सो आप सोचो कि और आप क्या बन सकते हो, और आप किस लेवल पे जा सकते हो, और नए कौन सी टेरिटरीज है जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सी, आपका जो बिहेवियर है, जो सीखना चाहते हो, वो किसी पत्थर पर नहीं लिखा है। एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी, सर्च कीजिए, और एक दूसरी टर्म है विच इज नोन एज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, लोग बोलते हैं ना कि अभी मैं और क्या बनूंगा, इट इज फिक्स्ड माइंडसेट। यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट का क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट के रिलेटेड डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी नहीं होती है। ग्रोथ माइंडसेट में ये होती है। जस्ट फोकस ऑन ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट और न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसके रिलेटेड फोकस कीजिए। अगर आप फाइनेंस से है और सेल्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। वो जाएगी, आप ग्रैब कर लो, उसके ऊपर मोमेंटम जनरेट कर लो, कंपाउंड इफेक्ट के साथ आपको सब मिलने वाला है, आई गारंटी यू। और जब होता कैसे ना कि जब लोग ये चीजें नहीं करते, आज को नहीं संभालते, लोगों को मिलते नहीं है, बात नहीं करते, दे डोंट नेटवर्क एनीमोर, दे डोंट स्पीक पॉजिटिवली, दे डोंट स्पीक पॉजिटिवली, और ये इस सबसे है ना लूज होता है ग्रिप। वो टेरेस पे जाके सोचता है कि सिगरेट पीऊं मैं, शराब पीऊं मैं, या जहर ले लूं, या किसी को बुलाऊं पीछे से कि जो मुझे टेरेस से धक्का मार दे। दे आर लूजिंग ग्रिप, क्योंकि बूम इफेक्ट में उसको जो रिजल्ट मिले हैं, बूम इफेक्ट में मिले हैं। मैं रियल एस्टेट का बादशाह था, बादशाह नहीं था बॉस, रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ था, बहती गंगा में तूने हाथ धो लिए थे इसकी वजह से। वो प्योरली तेरी वजह से नहीं हुआ था, वो प्योरली तेरी वजह से हो सकता था, तो अभी भी हो सकता है।
और मैंने ऐसे देखे जो रिसेशन में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर लिए। अगर मैं कह दूं कि अगर कोरोना वायरस के पहले मैं इंटरव्यू टेक्निक जो सिखाता हूँ, ग्रूमिंग टेक्निक जो सिखाता हूँ, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक जो सिखाता हूँ, प्रिपरेशन टेक्निक जो सिखाता हूँ, I was really good before this corona and covid scenario, but right now I am unable to produce results. No, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। चाहे वो वेबिनार हो और 1-to-1 सेशन हो, I am ready to give those results. I'm so much confident about myself, my strategies, about my team. Anyhow, I am able to deliver those results which I used to deliver before COVID. ये हो सकता है क्योंकि ये सब चीजें एविडेंस बेस्ड है। सो आप रोज का रोज काम अगर रोज कर रहे हो तो डेली लेवल पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एविडेंस क्रिएट कर रहे हो, और कॉन्फिडेंस हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है। इट हैज टू बी एविडेंस बेस्ड, नहीं तो थोड़ी सी हवा चली वो गिर जाता है। सो डोंट लूज दैट ग्रिप एंड बी माइंडफुल। ओके, फॉरगेट अबाउट इवेंट्स, फोकस ऑन योर रिएक्शन। अगर आपको पढ़ना है माइंडफुल कैसे रहते हैं, सिद्धार्थ एंड हिज ब्रेन, ये एक बढ़िया बुक है। गौतम बुद्ध के ऊपर और विपश्यना के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च की हुई ये बुक है, जरूर पढ़िए। फिर गौतम बुद्ध का पूरा लाइफ लीजिए। माइंडफुलनेस वहां से आता है, आपको पता चलेगा कि माइंडफुल रिस्पॉन्स किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे तो। सपोज कोई फेल हो जाता है, 4 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, पास, नाइसली पास, फेल अगेन पास एंड सुसाइड। इफ इट्स अ रूल, अगर ये मैंडेटरी होता कि फेल होने पर यू मस्ट डू वन सुसाइड अटेम्प्ट एटलीस्ट वंस, तो सब लोग सुसाइड करते थे। लेकिन कोई पास होता है, कोई अच्छे से पास होता है, कोई वापस फेल होकर वापस तीसरी बार पास होता है, और कोई सुसाइड कर लेता है। रिमेंबर, वेदर यू आर स्टूडेंट, entrepreneur, whoever you are, you always have a choice. You always have a choice how to respond. प्रोएक्टिव अप्रोच बोल रहा हूँ, रिएक्टिव अप्रोच नहीं बोल रहा हूँ मैं। रिएक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये लोग लेते नहीं है ऐसे। व्हाट शुड बी द स्पोर्ट मस्ट बी टेकन इन द स्पोर्टिंग स्पिरिट, ये लोग ऐसे लेते नहीं है स्पोर्टिंग से। ये बोलते हैं कि मैं रोज एक नारियल फोड़ता हूं ना भगवान के सामने, तो गॉड शुड कॉल मी बिफोर दिस कोविड सिनारियो। एटलीस्ट ऊपर से कुछ तो मेल वगैरह कुछ तो आने वाला था कि बच्चा कोविड का कुछ आ रहा है, अनसर्टन टाइम आ रहा है, नॉर्मल न्यू में तुमको लिखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपग्रेड करना है, रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो 20-25 दिन पहले में प्रिपेयर होता। ये उनका एक्चुअल माइंडसेट रहता है कि ये हुआ क्यों नहीं मेरे साथ। environmentally aware, this is a very important point and I want your attention over here. आप थोड़ा ज्यादा अटेंशन का आपका मैं डिमांड करूंगा यहाँ पे। forget about what is not there, focus on what's available. forget about what is not there, focus on what's available. देखो ये एक फोटो में तुमको बताता हूं, ये दूसरी फोटो में आपको बताता हूं, और ये तीसरी फोटो में आपको बताता हूं। अब तक जो मैंने कहा है, अब तक जो भी मैंने बोला है, वो इन तीनों से इंस्पायर है। क्योंकि ये सब चीज आप इनके बारे में पढ़ोगे तो ये तीनों लोगों के बारे में ये सब चीज हो गई है। ये सब प्रिंसिपल्स इन्होंने अप्लाई किए हैं रियल लाइफ में। कंपेयर टू हिज अपोनेंट, शिवाजी महाराज के पास, अपने शिवाजी राजा के पास कौन से रिसोर्सेस थे? My dear friends, it's not about resources, it's all about resourcefulness. And if you are resourceful, you are able to manage and optimize your resources very nicely, very effectively. कौन से रिसोर्सेस थे शिवाजी महाराज के सामने? बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कौन से रिसोर्सेस थे? हमें सब सुविधा है लेकिन एक बुक पढ़ने को नहीं होता। यहाँ पे हर कदम पे खतरा था, हर कदम पे बेइज्जती थी, हर कदम पे संघर्ष था, हर कदम पे अनसर्टेनिटी थी। बावजूद इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे, डिग्रीज ली, वो भी वापस बाहर जाके इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। हाउ कम इट इज पॉसिबल? इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेस, इट्स अबाउट रिसोर्सफुलनेस। ये देखो एक गैरेज में से पूरा एप्पल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। एक गैरेज में हिप्पी की तरह रहता था यार। ही वाज हिप्पी। Throughout his life, he stayed hungry, he stayed foolish. And my dear friends, start use
Start using your available resources, otherwise you will lose them one by one. We have that monkey bone. Okay, हमारे पास वो monkey bone आज भी है. किसी जमाने में हमको पूछ हुआ करती थी. यूज नहीं करते, नेचर ने बोला इट्स अ नेचुरल, यूज इट और लूज इट. तो नेचर ने बोला अगर यूज नहीं कर रहे हो, ओके, विल रिमूव दैट. And you know what is the biggest resources you ever have? What is the biggest resources you ever have? Your brain. The asset between your 2 ears. Your brain. दुनिया का तुमसे कुछ भी छीन लिया जाए, कुछ भी छीन लिया जाए तुमसे, लेकिन वो वापस लाने की कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस सब यहाँ पे है, सब यहाँ पे है. कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाए, तुम व्हील चेयर पर भी अटक जाओ, फिर भी तुम लाइफ में लाइफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपना ग्रोथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई कर सकते हो. यू कैन डू दैट. इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट रीड अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. जस्ट रीड अबाउट इट. इट्स ऑल हियर माय फ्रेंड्स, इट्स ऑल हियर. उस उम्मीद को मत खोने देना जिससे सब कुछ खोया हुआ मिल सकता है. यूज योर, एक्सप्लोर योर वे फ्रॉम हियर. और जो भी जितने भी लीडर मैंने दिखाए, जितने भी एग्जांपल बताए, उनके पास उन्होंने ये बहुत इफेक्टिवली यूज किया है. एंड व्हेन यू यूज योर रिसोर्सेज वाइजली, नाइसली, और रिसोर्सेज आपके साथ जुड़ जाते हैं और रिसोर्सेज अक्यूमुलेट हो जाते हैं. कहते हैं ना कि उसे ही मदद मिलती है जो अपनी मदद पहले खुद करता है. लोग बाद में आके जुड़ते हैं, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग. यू हैव टू प्रूव दैट यू आर कैपेबल फॉर दैट हेल्प, यू आर कैपेबल फॉर दैट नेटवर्क, यू आर कैपेबल फॉर दैट पेमेंट. You have to show that. So use this asset and be grateful. See, forget about complaining and focus on being grateful. See, whatever life you have right now, okay, somewhere on this earth, your life is dream life for someone else. चार दीवारें, छत है तुम्हारे पास, बहुतों के पास नहीं है. मोबाइल है, इंटरनेट है, वेबिनार है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा जी जान लगाने वाले इंस्टीट्यूशन के लोग है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे सेशंस अटेंड कर रहे हो, अच्छी किताबें है, अच्छा इंटरनेट एक्सेस है, 4 वक्त अच्छे से आपको खाने के लिए मिल रहा है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, पैसे है हेल्दी तरीके से, बहुत सारी चीजें. यू ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज टू अचीव योर गोल. My dear friends, you already have, I am not exaggerating things, you already have those resources. आपको कुछ भी अचीव करना हो, वो रिसोर्सेस आपके पास ऑलरेडी है, बट यू जस्ट नीड टू बी रिसोर्सफुल. जस्ट आस्क solution oriented question to yourself and don't complain about institution, professor, government, law, people, infrastructure, friends, family. No. When you complain, you lose your ability to solve the problem. When you complain, you lose your ability to solve problem and you become a crap magnet and you attract other crap people in your life. और ये जो क्रैप मैग्नेट रहते हैं, वो जो क्रैप होते हैं कि इनका एक बड़ा नेटवर्किंग ग्रुप रहता है. दे आर वेरी एंथुजियास्टिक कि कोई इनके नेटवर्क में अच्छी तरीके से शामिल हो जाए. दे आर लुकिंग फॉर इट कि कौन है और हमारी तरह दुखी आत्मा. और इनमें बहुत अच्छा कंपटीशन चलता रहता है. एक कहता है मेरा और पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम है, दूसरा कहता है मेरा पढ़ाई का और जॉब का प्रॉब्लम है, तीसरा कहता है मेरा पढ़ाई का जॉब का इंस्टीट्यूशन का इशू है, चौथा कहता है मेरा पढ़ाई का जॉब का इंस्टीट्यूशन का और सोसाइटी का इशू है. सबसे बड़ा कंप्लेनर कौन? इनमें वो कंपटीशन हमेशा चलता ही रहता है. So you want to join that network? No, not at all. You have to win this uncertain time, and people are joining such a networks in this uncertain period. लोग बात कर रहे हैं, बैठ के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और बोल रहे हैं कैसा होगा. इंस्टेड ऑफ दैट कोई एक्शन लेना चाहिए उन्हें. डोंट सबोटाज योरसेल्फ. क्राइंग एंड ब्लेमिंग डजंट वर्क एज अ स्ट्रेटजी. अगर आप ये सब चीजें करते हैं, अगर आप जो मैंने 8-10 चीजें आपको बताई इसके ऊपर काम करते हैं, सो यू विल बी यूनिक. कुछ लोग यूनिक रहते हैं बट नॉट नेसेसरी कि यूजफुल हो. Just because of your unique does not mean that you are useful.
अगर आप ये चीजें कर रहे हो मार्केट में, आपको अनसर्टन टाइम में भी अच्छा प्राइस चाहिए, प्रीमियम प्राइस चाहिए, सो यू हैव टू बी न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, न्यू, डिफरेंट एंड बेटर। ये होता है न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, ये होता है न्यू, डिफरेंट और बेटर, ये होता है न्यू, डिफरेंट और बेटर। सो अभी आपको वक्त मिला है, व्हाई डोंट यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, व्हाई डोंट यू डिवोट दैट टाइम इन क्रिएटिंग योर पर्सनल ब्रांड। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो, व्हाटएवर आई एम सेइंग टू यू, कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपका प्री स्कैनिंग भी होता है जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले। सो प्री स्कैनिंग में आपके रेज्यूमे के साथ उनको पता चला जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, सपोज मार्केटिंग में आपका स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग में आपने आपके स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, आपका मार्केटिंग कंसेप्ट के रिलेटेड यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बढ़िया डिस्कशन है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहां पे आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, रिकमेंडेशन कर रहे हो, कुछ कमेंट भी कर रहे हो, नेटवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हो मार्केटिंग के रिलेटेड। उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वो इंस्टाग्राम हैंडल भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मार्केटिंग को ही, मार्केटिंग के रिलेटेड कंसेप्ट को ही डिवोटेड है हाईली। फेसबुक पेज का भी वही हाल है। सो आपका रेज्यूमे और आपका ये पर्सनल ब्रांड जो प्री स्कैनिंग में दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपके नौकरी मिलने के चांसेस घटेंगे या बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स बढ़ने वाले हैं। सो डिवोट योर टाइम, और वहां पे एम्प्लॉयर को एक सर्टेनिटी आ जाती है। इस अनसर्टन टाइम में आप उसको सर्टेनिटी दे रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यू आर प्रोवाइडिंग ट्रस्ट दैट आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई स्पेशलाइजेशन, एंड यू गेट वेरी सीरियस अबाउट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ब्लॉग, ट्विटर वगैरह कुछ लिख रहे हो, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोग है, सब मेंटेन कर रहे हो, सो यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू अटर, you have to make research, you have to discuss about things। सो वहां पे भी आपका ये वेब, जो ब्रेन में जो वेब है न्यूरॉन्स का, वो भी स्ट्रेंथन होता है, आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, आप चीजों को और 3 डायमेंशन से देखना शुरू करते हो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका एक्सपर्टीज बढ़ता है। इन शॉर्ट, आप इस अनसर्टन टाइम में अपनी रिजल्ट लाने की कैपेसिटी पर काम करते हो, और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने की कैपेसिटी जिसके पास है, उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर, आएगा ही आएगा आपके पास वो पैसा। सो क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। हमसे भी बात कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमसे आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू। हम लोग भी आपको वैल्यू कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका करियर को एक्सीलरेशन देना चाहते हैं, वी आर देयर फॉर यू।